محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، ایک ضروری چھوٹی سی گزارش، آپ سماعت فرمائیں اور بیزاری محسوس نہ کریں کیونکہ سننا ضروری ہے. تو میں اس بندے سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ اہل حدیث جو ہے یہ نکل کے بنتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو شروع ہی سے جو ہے اہل حدیث ہوں. تو جب میں یوسف بھائی سے، جن کے ذریعے سے ان سے بات ہوئی تھی، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا دادا بریلوی تھا، ان کے باپ جو ہے بریلویت سے نکل کر کے دیوبندی بنا، اور یہ جو اس کا پوتا ہے بریلوی کا، یہ اہل حدیث بنا ہے. تو یقیناً یہ لوگ جو ہے نا پہلے بریلوی میں رہتے ہیں، پھر جو بریلوی سے دیوبندی بنتے ہیں، دیوبندی سے اہل حدیث بنتے ہیں، پھر ادھر سے آگے جو ہے قادیانی بنتے ہیں یا شیعہ رافضی بن جاتے ہیں. تو ان کا یہ سلسلہ چالو ہے اور قیامت تک چالو رہے گا، کیونکہ یہی لوگ کٹ کے 72 بنیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسے کہ وہ دعویٰ کرے گا ہم خود ہی قرآن سمجھتے ہیں، ہم خود ہی حدیث سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ عربی پڑھنا نہیں آتا. اچھا، تو اسی کو کہتے ہیں غیر مخلدیت. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں نور بشر صاحب کہ آپ بریلویت کو کس لیے چھوڑ دیے؟ آخر آپ کو کہاں غلط معلوم ہوا؟ اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں، ہم کو بتائیے کچھ. ارے یار نہیں پتہ ہے تو پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو ہم شروع سے اہل حدیث ہیں نا، تو بتائیے بریلوی کے بارے میں کچھ. شروع سے اہل حدیث ہیں؟ ہاں. مجھے تو کبھی کوئی دکھائی نہیں سکتا کہ شروع سے اہل حدیث ہے کوئی. دادا پر دادا بریلوی ہی رہے ہوں گے. میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے سکتا ہوں، اس بات کی قسم اٹھا سکتا ہوں. کنورٹ تو بعد میں ہوتے ہیں نا. اٹھائیے قسم اٹھائیے آپ. تو آپ کے باپ دادا آپ کے کون کنورٹ ہوئے تھے؟ دادا یا پردادا یا آپ کنورٹ ہوئے؟ کون کنورٹ ہوئے؟ وہ جب آپ اتنے کانفیڈنٹلی بول رہے تو قسم اٹھا لیجیے گا. نہیں، میں تو قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ دادا یا پردادا. تو سنو، تمہارا پردادا سے آگے تمہارے اہل حدیث نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ تمہارا پردادا کنورٹ ہوا ہوگا، یا پھر تمہارا دادا یا پھر تمہارا باپ. اس 3 نسل سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے بھائی، بات سن میری. ہاں بولے. تمیز میں بات کر. تو ہم کیا، اچھا ہم نے بدتمیزی کیا کی یار؟ یہی تو تم لوگوں کی عادت ہے، تم لوگ اتنے بڑے غلاظت. کیا چیز؟ تمیزی سے ہمیں بات کرنی ہے. اچھا، میں نے کیا بدتمیزی کی؟ تمہارے جیسے بدتمیز دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو، تجھے تمیز ہے؟ اچھا، کس نے مسلمانوں کو تمہیں مشرک کہنے کے لیے حق دیا ہے؟ تجھ سے زیادہ ذلیل اور سور سے زیادہ مخلوق انسان میں کوئی نہیں ہے. خود تو مسلمانوں کو مشرک کہہ کے دن رات گالی دیتے ہو، اور ایک ہی لفظ میں سارے گالی دے دیتے ہو، اور کہتے ہو ہم بہت بڑے تمیز والے ہیں. تمیز کی بات آئندہ مجھ سے مت کرنا، ٹھیک ہے؟ بھائی بات سن میری، کون گالی دے رہا تھا؟ مشرک کا مطلب سمجھتے ہو؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ تم کو گالی کس نے دیا؟ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، مشرک تم کہتے ہو نا بریلویوں کو؟ تم کو گالی کون؟ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، تم بریلویوں کو مشرک کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تم کو گالی ابھی دو نا، اتنے بڑے بدتمیز تم ہو کہ مسلمانوں کو مشرک کہہ کے ایک لفظ میں سارے گالی دیتے ہو، اور ابھی بہت بڑا تمیز والا بنتے ہو. تمہارے تو فطرت میں بدتمیزی بھرا ہوا ہے. سن، میں کہتا ہوں بھڑکے ہوئے نہیں ہے. تم نے مجھے تمیز دکھانا چاہا، اس لیے میں نے تمہاری کنڈلی تمہیں دکھا دی. بھڑکے نہیں. سنو یہ بتاؤ کہ تم نے جو دین حدث، دین وکٹورین، انگریزوں کا دین دھرم قبول کر لیا ہے، تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہاں، انگریزوں کا ہے. میں دکھاؤں؟ انگریزوں میں ایک دونما فرقہ ہوتا ہے جس کا نام احمد ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے، علی ہوتا ہے. مدرسوں میں باضابطہ پوری تیاری کر کے پڑھتا ہے وہ. اچھا. اور انہی لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرایا، برطانیہ سے پیسہ بٹورا، اور سعودی میں آل سعود یہودی کے اولاد کو نصب کیا، وہاں پہ قبضہ کروایا. اچھا. ہاں، تمہیں تاریخ نہیں پتا ہے، میں بتاؤں گا، لیکن میں پہلے پوچھتا ہوں، تمہارا جو دعویٰ ہے اہل حدیث تم ہو، یہ بتاؤ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تم ہو؟ ہاں، ہم کو تو لگتا ہے. ہاں، تم کو یہ بتاؤ کہ مزار پہ جانے سے کس صحابی رسول نے روکا ہے؟ قبروں میں جانے سے کس نے آرڈر دیا ہے؟ آرڈر کس نے دیا ہے؟ اٹھاؤ ابو داؤد مستدرک للحاکم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، مستدرک للحاکم. اور یہ حکیم امام بخاری، امام مسلم کے شرائط کے مطابق پرکھنے کے باوجود صحیح ہے.
جو شرائط صحیح ہونے کے رکھے ہیں امام بخاری اور مسلم، تو دونوں کے شرائط کے مطابق یہ مسلم حدیث اور صحیح ہے۔ سنو بخاری اور مسلم نے اسے صحیح قرار دے دیا ہے۔ نہیں نہیں، بخاری کا جو شرائط ہے کہ ان شرائط کے اعتبار سے حدیث صحیح مانی جائے گی، تو وہ شرائط کے اعتبار سے جب آپ اس حدیث کے سند کو پکڑیں شرائط گے، کے اعتبار سے صحیح ہے ہاں تو شرائط کے حدیث اعتبار سے وہ حدیث بالکل صحیح ہے، دونوں کے شرائط کے اعتبار سے، یعنی جو اچھا شرائط ٹھیک، امام بخاری اور امام مسلم نے مقرر کیا ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اس زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا وہابی اہل حدث مروان، وہ قبر رسول کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول پر پیشانی لگا کے رکھا ہوا ہے، تو اس نے اس شخص کے گردن کو دبوچا اور کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے پتا ہے؟ لیکن جب چہرہ پھیرا تو دیکھا وہ قبر پر پیشانی سے ٹیک لگا کے رکھنے والے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہنے لگے کہ تو کیا سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو کہ میں پتھر کے جو ہے ڈھیر کے پاس آیا ہوں، مٹی کے ڈھیر کے پاس آیا ہوں؟ میں اپنے رسول اللہ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اس وقت تک مت رونا جب تم میں اہل والے موجود ہوں۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، اور اس وقت رونا جب نا اہل لوگ جو ہیں موجود ہیں، یعنی کہ نا اہل لوگوں کے ذمے میں جو ہے کوئی عہدہ آ جائے، کوئی ذمہ داری آ جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہاں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں قبر رسول میں، پیشانی لگا کے ٹیک لگائے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ اب اس دور میں مزار پہ جانے سے، قبر رسول پہ جانے سے کس کو تکلیف ہوتی تھی؟ کون بت پرستی کرنا سمجھتا تھا؟ مروان، جو کہ خارجی تھا، منافق تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ عقیدہ دے دیا کہ قبر رسول پہ آنا یہ مطلب نہیں کہ بتوں کے پاس آیا ہے، بلکہ قبر رسول پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے ملنے آیا ہے۔ اس لیے تو کہہ رہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مٹی کے ڈھیر کے پاس آیا ہوں، پتھر سے ملنے آیا ہوں؟ یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرما رہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بتوں کے پاس آیا ہوں، میں قبر رسول کے پاس آیا ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خارجی کا مزاج سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے قبر رسول کو بت سمجھتا ہے اور یہ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے اسے سمجھا دیا۔ چلو الحمدللہ ہمارا عقیدہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اب تم بتاؤ صحابی رسول میں سے کس نے ہے جس نے روکا ہے کہ قبر رسول کی زیارت مت کرو، مت جاؤ؟ اچھا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر رسول پہ گئے۔ ہاں گئے تو گئے نا، ہر کسی کے قبر پہ جانا جائز ہے؟ نہیں 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 نہیں، تم روکتے کیوں ہو؟ وہ چھوڑو، نہیں 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 نہیں، ارے تو پیشانی ٹیک لگا کے، پیشانی لگا کے رکھے تھے تو قبر رسول اونچی تھی جب تو لگا کے رکھے تھے نا، نہیں تو پیشانی کیسے لگا کے رکھتے؟ سجدہ کر رہے تھے کیا وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر دیکھے ہو گیا تھا؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر دیکھے ہوئے ہو کیا؟ ارے ہم دیکھے نہیں، بخاری میں موجود ہے روایت کہ اونٹنی کا جو کوہان ہے تو کوہان نما نبی پاک، ارے بھاگو مت، سنو ادھر ادھر بھاگو مت، تمہاری عادت ہے بھاگنا، پھڑپڑانا۔ تمہیں پہلے ایک دلیل ہے، سوال کا پٹارا تم نے ایک کھولا، کیا نہیں سن رہے؟ ارے سوال کا پٹارا تم نے ایک کھولا، میں نے جواب دے دیا۔ اگر تو اہل حدث ہے، سن، اگر تو اہل حدث ہے، اہل حدیث نہیں ہے تو تو ایسے ہی بڑبڑائے گا۔ اگر تو اہل حدیث ہے، حدث نہیں ہے، تو میرے سوال کا پہلے جواب دے گا۔ بتا صحابہ میں سے کون ہے جنہوں نے روکا ہے کہ مزارت پہ مت جاؤ؟ بات کیا نہیں سن رہے؟ نہیں ہم سنیں گے، چلو بولو، اب تم جواب دو۔ بگی میں کتنی قبر ہے جو ارے پکا کی گئی ہے اور اونچی گئی ہے؟ ارے بھاگ مت، یہ تو میں نے تمہیں تاریخ بتا دیا کہ دو نما فرقے سے تمہارے آبا و اجداد، جو فکری آبا و اجداد ہیں، خاندانی نہیں فکری، وہ پیدا ہو کر کے برطانیہ کے، ارے یا پھر سنتا بھی نہیں ہے، تیرے دین تیرے لیے ہے۔ ہاں الحمدللہ، وہ تو ہمارے لیے دین ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم تم انگریزوں کی پوجا کرتے ہو، ہم انگریزوں کی پوجا نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کو پتا ہم کس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہاں تم کرتے ہو، تم انگریزوں کی پوجا کرتے ہو، اس لیے کہ انگریزوں کا دین دھرم پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو مجھے، اچھا تمہارے سنو، تمہارے دین حدث میں کوئی دلیل ہے یا دلالی ہی ہے کس چیز کی دلیل چاہیے کہ صحابہ نے مزار پہ جانے سے کب روکا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ کہاں روکا ہے؟ حدیث دیکھنی پڑے گی بھائی، تمہاری دلالی۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے مطلب تو اچھا، تو روکنے کے بعد سنو تو مطلب اے وہابی دیکھو نا، صحابی اور وہابی میں یہی فرق ہے کہ صحابی رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کے قریب تھے، سمجھ رہے تھے۔ وہابی انگریزوں کا چاہنے والا، انگریزوں کا دین لے کے، تو وہابی کیا کرتے ہیں، حدیث کا مطلب بگاڑ کے انگریزوں سے پیسہ لے کے بیان کرتے ہیں، اور صحابی حدیث کی محبت عقیدت کو امت تک پہنچاتے ہیں، ان کا یہ منشا ہوتا ہے، اور انگریزوں کے دین پہنچانے کا منشا یہ وہابیوں نے لے کے رکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بولنے نہیں، اسی لیے کہتا ہوں، سنو مجھے دلیل دے، ارے دلیل دے، دلیل۔ حضرت ابو ایوب انصاری کیوں گئے تھے؟ مطلب رسول اللہ کی مخالفت کی انہوں نے مزار پہ جا کے، کیونکہ منع ہے نا تمہارے دھرم میں۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے والی حدیث جو تم نے بتائی ابھی، پتہ نہیں کون سی۔ ارے سنو، تم لوگ، ارے تم پڑھتے کیا ہو؟ تم تو اپنے ملاؤں کی پوجا کرتے ہو، قیاسی فتوے داغتے ہو، تم حدیث پڑھتے کہاں ہو؟ کتنی حدیث تجھے یاد ہے؟
बस वो मतलब का, जो तुम्हारे मतलब का वो भी माना तोड़ मड़ोड़ करके, जिसका मतलब कुछ और है। 1400 साल में किसी ने जो मतलब बयान नहीं किया, जो तुम्हारे मुल्ला ने अंग्रेजों से पैसा लेके बयान किया, वो मतलब तुम बताते हो। वो चंद हदीसें पढ़ते हो तुम और कहते हम आले हदस है, आले हदस है। भाई रुको। जाहिल कह के। चल मुझे दलील दे, दलील दे। सहाबा भाई में से रुको किसने भाई, रोका? यही और सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकने के बाद इजाजत दिए थे या नहीं दिए थे? और किसने नबी किसने पाक के इजाजत देने के बाद सहाबा में से किसने रोका? वरना तौबा मोहम्मद कर, रसूल मजहब इस्लाम को कबूल कर और दीन हदस को लात मार। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोका है, हदीस मिल जाएगी तुमको, लेकिन अभी नहीं। अरे क्या हदीस मिल जाएगी? क्या हदीस मिल जाएगी? हदीस हदीस क्या होती है? रुकने वाली जो तुम बोल अच्छा रहे तो हो। अच्छा ये चलो, तो रोकने वाली हदीस तुम दोगे क्या? मुझे खुद अल्हम्दुलिल्लाह पता है। रोकने के बाद रसूलुल्लाह ने इजाजत दी थी या नहीं दी थी इजाजत? किस चीज की? और कब्रों में जाने कब्रिस्तान पे की, जाने की इजाजत दी कब्रों थी में भाई, जाने और की ये इजाजत दी या मजार, नहीं दी? पहले ये बताओ पहले। कब्रिस्तान पे जाने की हाँ इजाजत दी गई हाँ। थी और मजार बनाने की इजाजत नहीं दी अरे गई थी। मजार को अभी तुम जो, अच्छा मजार कहते किसे हैं? क्या? मजार किसे कहते हैं? अरे वही जो ताम झाम तुम लोग करते हो ना, ईंटा सजाती है, फिर से अच्छा ईटा सजाते हैं तो वो मजार हो चूल्हा गया। वगैरह अच्छा ये लगा के बताओ, उसको मजार। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्र शरीफ को खोदा गया था, कहाँ कहाँ? चटेल मैदान में या किसी हुजरे में? अरे गुजरे में था तो वो तो। हुजरे में तो क्या हुजरे की 4 दीवारी होती है या चटेल मैदान होता है वो? वो तो नबियों की सुन्नत रही है, चलो जहाँ तो नबी चलो, मरते अब वहीं पता चल दफन गया। दफन किए सुनो जाते हैं। सुनो सुनो, पता चल गया कि जो 4 दीवारी के अंदर कब्र खोदते हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है। तुम वहाबियों का ये तरीका नहीं है, इसलिए कि तुम दुश्मन रसूल हो, तुम सुन्नत मुस्तफ़ा के दुश्मन हो। और हम अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मजार तो मजार सबसे पहले सहाबा ने बनाया नबी पाक का, इसलिए कि हुजरे के मगर अंदर कब्र रसूल बनाया, जिनके 4 चलिए दीवारें थी, ठीक है। छत भी थे। बहुत सहाबा तो का इसीलिए मजार सुनो, है। इसीलिए हम कौन कहते, सा सहाबा का मजार है? अरे सहाबा नबी का है मजार। अब तुमको तो क्या दलील सहाबा का दिया? तो बताओ ना। अरे सहाबा का तुम्हारे हजरत, जो औलिया की बात तुम कर रहे सुनो हो, तुम, अपने बुजुर्गों की सुनो बात कर रहे हो, तो सुनो सुनो, मोहम्मद रसूल ने सुनो आपको तो सुनो बराबर कर रहे हैं ना। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, तमाम सहाबा के मज़ारात थे, सऊदी में भी थे। वो सऊदी नहीं, हजाज में। सऊदी तो ये यहूदी है। ये आज से 100 साल पहले अंग्रेजों सऊदी से पैसा यहूदी है। लेकर के, सुनो हज सुनो मैं करने बता, नहीं जाते क्या? अरे सुन तो लो यार। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों से पैसा लेकर के यहूदियों ने, जो मुसलमान का चोला पहन के रखा था आले सऊद, उसने मज़ारात औलिया सहाबा को तोड़ दिया। अब उसके अलावा आप दुनिया भर में जाओ, देखो हर जगह मज़ार, नबियों के मज़ारात मौजूद है। वलियों अच्छा। सहाबा का मकाम नबी के बराबर नहीं है, लेकिन नबियों का जो है मज़ारात मौजूद है। लेकिन वहाँ भी अंग्रेज़ों से पैसा लेकर के मुसलमानों के मुक़द्दसात, जिनसे अंबिया की यादें ताज़ा हो जाती हैं, वलियों की और सहाबा इकराम की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिन चीज़ों को, जिन मकामात को देख करके यहूदियों को कब गवारा है कि उन चीज़ों को रखा जाए जिनसे मुसलमान उनको न भूलें और उनको याद रखें, उनसे मोहब्बत करें। तो यहूदी चाहता है कि मुसलमानों के दिलों से उनकी मोहब्बत निकालो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकालो, सहाबा की मोहब्बत निकालो, और तितलियां निकालने हटा के लिए दिए ना। सबसे पहले मुक़द्दसात को मिटा दो। जब मुक़द्दसात मिट जाएंगे, ये बताओ तुम्हारे घर से तुम्हें इतनी मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि वो कितना तुम्हारा घर बोलते है। हैं। सुन लो, पहले पहले पूरी बात सुन लो। तुम्हें अपने घर से इसलिए मोहब्बत है कि वो तुम्हारा घर है, लेकिन कुछ दिन बाद वहां से तुम चले जाओगे ना, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो मोहब्बत वहां नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि अब तुम्हारा घर ही नहीं रहा। तो सहाबा दूसरा इकराम घर के बन जाएगा ना मज़ारात फिर। से मुसलमानों को मोहब्बत थी। सहाबारात के मुक़द्दसात, सहाबा इकराम के मुक़द्दसात से, अंबिया अलैहिस्सलाम के मुक़द्दसात से। तो यहूदियों को तकलीफ थी कि मुसलमानों के दिलों से नबियों की, वलियों की, सहाबा की मोहब्बत निकालो। कैसे निकालोगे? मुक़द्दसात को तोड़ दो, उनके वो नहीं तो उनके आने वाली नस्लें ऐसे ही भूल जाएंगे, पता ही नहीं होगा अच्छा। उनको। ऐसा था। तो यहूदी के पैसे लेकर के 2 नंबर यहूदी, जो दिखावे का मुसलमान और हकीकत में यहूदी है आले सऊद, उन्होंने यहूदियों से पैसा लेकर के आले सऊद ने ऐसा काम कराया। वरना आज से 200 साल पहले की तारीख में दिखाओ, तो मैं तुझे आज से बाकी 700 दिलों से साल पहले मोहब्बत दिखा निकल गई सकता हूँ साहबा के तस्वीरें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुझे तस्वीर दिखा सकता हूँ जन्नतुल बकी से। की। किस चीज? हजरत फातिमतुज ज़हरा के मज़ार में कुब्बा शरीफ लगा हुआ था। हजरत उस्मान गनी के मज़ार थे। अरे सहाबा इकराम के मज़ारात थे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम वहां भी तो आज से 100 साल पहले वहां कब्जा किए, दूनमा फिरके काबा भी यहूदी से। वाले। वरना आज से 200 साल काम पहले की करो तारीख ना। देखो देखो, इसीलिए कहते हैं तुम भी हुजूम बना लो, जाए कब्जा कर लो फिर। कब्जा हमको करने की जरूरत नहीं, मदीने की क्यों? जमीन तुम्हें खुद चिल्लाने से तो निकाल कुछ देगी। होगा नहीं ना, वैसे मेरे तुम्हारे चिल्लाने रसूलुल्लाह से ने तो कुछ सुन, होगा अरे देखो तुर्की वाला 1 साल बचा हुआ है, तुर्की वाला ऐसी ठुकाई करेंगे अभी तुम्हारे तुम्हारे यहूदियों की कि क्या हाल होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और वो प्लस तो दुआ मदीने में है। जलजले आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि आजाद हो जाए, अपने पावर में आ जाए। कौन? तुर्की तुर्की जो तो तुम बोल रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, ना। तो तुर्की पावर में आएंगे तो तुम्हारे यहूदियों का क्या हाल होगा वो तो सोचो। हाँ वो पता पता लगेगा तो जब होगा तो। हाँ, तुम्हारे सोचना अच्छा। ना और सुनो, और हदीस पाक में बिल्कुल वाज़ेह है कि मदीने की ज़मीन उल्टी करके तुम्हारे जैसे मुनाफिकीन मर्द औरतों को मदीने से निकाल देंगे और अच्छा। ईमान वाले जाके उधर तो हम बसेंगे। मदीना में है मिस्की नहीं ना, शरीफ में हम है। अपने घर में बिहार में।
समझ लो। तो अब वैसे भी निकलने की बारी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया से कौन देखिए निकाला? वहाँ पे शियाओं का भी कब्जा रहा, करामतिया का भी, ठीक है। करामतिया भी वहाँ पे हुकूमत किए, शिया खारजी भी कब्जे करके हुकूमत किए, यहूदियों भी हुकूमत अभी कर रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अनकरीब वो दिन भी फिर आएगा कि जब मुसलमान फिर जो है जागेंगे और इस काफिरों को वहाँ से हटाएंगे, इस अरे दुनमा कहाँ पे फिरके के बोल रहे हो भाई? यहूदियों को, मदीना में? और फिर हेलो, मुसलमान मुसलमान फिर वहाँ लौट आएंगे उधर। हदीस है भाई, तो हदीस है। मदीना में बोल रहे हो? हाँ मदीना में, तो जजीरतुल मदीना में अरब में। मुसलमान वगैरह नहीं है क्या अभी? मुसलमान तो है, लेकिन जो हुकूमत अच्छा, का बागडोर संभाल रहा है वो यहूदी है। हुकूमत वही ना है, सुलेमान का बेटा वगैरह किस, हाँ सलमान तो का बेटा ये सऊदी सब कौन है? मैंने बताया नहीं दुनमा की निशानी तो कि नाम यहूदी अहमद वगैरह तो रखता है, नहीं? नाम मोहम्मद रखता है, मदरसे में बाज़ाब्ता पढ़ाई करता है। अच्छा, हाँ तुमने तारीख पढ़ी है यहूद आले सऊद की? ना भाई हम तो तुमने कुछ तो पढ़ते नहीं हो, अंधभक्त हो। तुम कहाँ पढ़ते हो हाँ, यार कुछ, तुम तो अंधभक्ति करते हो मदरसे में यार। हम कहाँ पढ़े हुए तुम्हारी तरह, इतना तुम नॉलेज कहीं है नहीं नहीं पर, ना। तुम पढ़े नहीं हो, तुम पढ़े हुए हो, और ऐसे ही तुम अच्छा जो है पढ़े। गुमराह में पड़े रहोगे जिंदगी भर। हाँ जब हाँ। कयाम कब्र में जाके ठुकाई होगी तब होश आएगा तुम्हारे ठिकाने में। चलो वो सारी अच्छा, बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ सहाबा इकराम में से किसने रोका मजार पे जाने से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पहले ही बोल चुका, तुम तो कितनी रोकने के बार बाद क्वेश्चन इजाजत कर रहे नहीं हो? दी थी? तो रुकने के बाद से हाँ तो कब्रिस्तान में जाने इजाजत की दी, तो अब इजाजत किस है। पर अमल किया जाएगा? अब रोका जाएगा कब्रिस्तान या इजाजत दी जाएगी? कब्रिस्तान में जाने पर तो अरे तो इजाजत दी मजार गई थी किसे, ना, मजार मैंने कब्र साबित को कर दिया। मैं ऊंचा देखो, करने को मजार जाना। तुम्हारे अहले हदस में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ तुम बात हमारा समझ। एक अमल कुरान हदीस के खिलाफ साबित कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैदा नहीं अच्छा, हुआ, क्योंकि ये अरे अंग्रेजों एक का बात बाइबल बताओ, लेकर के सुनो आता है। भाई, भाई बरेलवी हो ना तुम? क्या चीज? ये जो या नबी होती है हाँ दलील है, हाँ, इसकी दलील है तुम्हारे पास? हर एक अमल का दलील है। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह, हर चाहिए एक अमल हमको। का अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस से। मैं हर, तुम अपने गांव में मेरे लिए मुनाजरा, मेरे साथ किसी को तैयार करो, अपने कोई मौलवी को, सही ठीक में है। करोगे मुनाजरा? हाँ मैं मुनाजरा करने के लिए कहाँ आऊंगा पे, कहाँ पे हो तुम्हारे तुम? गांव में। मैं हूँ कर्नाटक में। अरे यार करना, मेरा बिहार ना था, हाँ तो क्या ना हुआ, बताओ तो मेरे बिहार को। मेरा गांव है, मैं कर्नाटक में यहाँ नौकरी करता हूँ, घर नहीं है मेरा यहाँ, ठीक मैं है, भी आओगे बिहार अभी कर। फिर गोपालगंज का नाम सुना हुआ क्या? हाँ नाम तो सुनी है, तो ऐसे क्या मुंह उठा के चले जाएंगे लावारिस के तरह, आले हदसों के जब तरह? तुम्हारे लिए बारात बारात तैयार किया जाएगा फिर आओगे? तुम बारात आओ, तैयार, प्रैक्टिस करो, तुम उसके बाद से बारात बुलाया तैयार जाएगा मत तुम्हें। करो। बात पूरी हाँ, हो जाए मुकम्मल। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे खर्चा करके हमारा खर्चा भी बर्बाद हो जाए, तुम दुम दबा के छुप जाओ, ऐसा तो यह मतलब ऐसा नहीं नहीं है ना। होता भाई। अरे नहीं तो फिर ये करो, तुम्हारा जो बड़ा मौलवी है जिसने थोड़ी हाँ बहुत हाँ। पढ़ाई की है उनको लाइन पे ले लो, ठीक है। और अगर सलाम पे बात करनी है तो फकत सलाम पे ही बात करेंगे। तो तुम हमको दलील दो ना, हाँ तो सलाह के हम बाद तो हम यही खुद नहीं, से यही लेना हम ना, कह रहे हैं दलील ना, दो सुनो तुम। सुनो, हम यही बोलो। कह रहे हैं कि तुम अपने मौलवी को लेकर के आओ। मौलवी को अब सुनो, छोड़ो वो ना, हम सलाम पे बात कर बात रहे करे, हैं अरे तुमसे, तो यार फिर सलाम पे सुनो, सुनते नहीं हो यार तुम लोग। बात। शराबी होते हो क्या सब लोग? मतलब नशे में धुत रहते हो? बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अपने मौलवी की मानोगे, जो तो मैं मैं कह कहता रहा हूँ हूँ वो सुनो। तुम समझ रहे हो? न सुनो, मैं कह रहा जो हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे दलील मांग रहा हूँ, तुम अरे तो दस दस हम दो, हमें समझ भी रहे दलील दो, हैं, हमें भी सुनो पता सुनो, चले। हम समझ रहे हैं, तुम्हारे मुल्ला जो हम लोगों से लात खा के छुपा हुआ है, वो तुम जैसे जाहिलों को भेजा है कि जाओ सवाल का गठरी खोल के रख दो। हाँ हाँ। बस यही सिखाया है तुमको, इसीलिए हम कहते हैं तुम अपने मौलवी को लेके आओ। वो सवाल भी करना सर चाहते सुनो, तुम? हाँ या नबी पर वो भी दलील हाँ। देंगे कि पढ़ना हराम है, नाजायज है, इस पर वो दलील देंगे कुरान हदीस से। और मैं जायज है, दुरुस्त है, इस पर मैं दलील दूंगा कुरान हदीस से। जो कुरान हदीस हाँ से तो दो दलील ना, दे हम दिया, पूछ रहे थे तो सुनो हमको तो जो दे सुनो सकते ना, हो, जो सही होगी अरे तो सुनो बता तो जाओ। यार, मतलब नाजायज अरे की बोलना भाई, अच्छा तो नाजायज की दलील तुम्हारा अब्बा देगा? नाजायज की हराम है, दलील? नाजायज है, इसका दलील कौन देगा? अरे तो तुम साबित कर दो ना, अरे कोई तो है तुम तुम्हारा साबित अमाल, नहीं करोगे। तुम्हारा सुनो अमाल अच्छा ये तुम्हारा है, तो बताओ, सुनो दलील सुनो, ये तुम्हारे पास बताओ, होनी चाहिए। ये बात बताओ, मैं कहूँ कि तू हरामी है, तू हलाली नहीं है, मैं कहूँ कि तू हलाली नहीं है, तू कहे कि नहीं मैं हलाली हूँ, तो मैं कहूँगा तू साबित करो, और मैं तुझ पर एतराज करूंगा तो तू मुझसे दलील नहीं मांगेगा कि तुझे मुझे कह रहा है कि तू हलाली नहीं है, तो इस पर दलील तू मुझसे नहीं मांगेगा? सुनो तो, यहाँ कोई नहीं फॉल्ट है बताओ, नहीं एक ना, तो तुम समझ रहे हो अकली बात तू तुम्हारी मुझसे मांगेगा गंदगी कि है नहीं? दिमाग की, वो तुम्हारी गंदगी है, और तुम्हारा अरे ये वो अमाल का मसला हो गया, वो हरामी हलाल का मसला है, नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे सुनो, तुम नहीं हो, तुम अपने गुमान में कहते हो मैं हलाली हूँ भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम हलाली नहीं हो, तो अब मैंने एतराज कर दिया ना, तो तुम मुझसे दलील तुम नहीं बात मांगोगे? को बदलो नहीं, हम सिंपल सा अरे क्वेश्चन सुनो कर रहे हैं तुमसे, सुनो, बस उसका तुम दलील जैसे दे दो, बात वहाबी खत्म हो जाए। तुम विक्टोरियन फिर सवाल के भाग रहे, गठरी लेकर घूम, अच्छा इतना सवाल फिर के भाग रहे, सुनो, सवाल के जो इतने गठरी लेके घूमते हो, तुम्हारे सर में बोझ मालूम नहीं होता क्या? फिर नहीं है। हाँ मैं तुम्हें ये सवाल नौकरी ही ही मिल करते गई है करते तो, सवाल की गठरी लेके घूमने की। अरे मस्त है यार, और सवाल तो करो, अरे हमने तो आंसर कितना करो। जवाब दे दिया है, लेकिन तुम आज तक कुछ कहाँ जवाब जवाब दे नहीं, रहे हो?
कुछ मैंने जवाब नहीं मज़ारात है। पे ताल्लुक से मैंने कितने दलील दिए? मैंने तुमने जवाब गलत दिया दिए मेरे भाई, नबी कोई का सही नहीं मज़ार, है। और मेरे नबी का वो मज़ार सबसे पहले कब्रिस्तान का सहाबा ने मज़ार बनाया। अंदर होता है, और मेरे नबी कब्रिस्तान का में मत मज़ार दफन डाल अरे दिया, बना के कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार। कब्रिस्तान में दफनाए गए, नबी पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कब्रिस्तान बात में लेके गए थे। नबी पाक तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात का को मज़ार जो है बदल रहे हो, कब्रिस्तान में है। समझ रहे हो, अलग मैटर अरे है। सुनो, वहाबी में एक ही चीज बच जाती है, वो 3 और 3 5 अगर ना किया तो उसका धर्म सड़ जाएगा, बदबूदार साबित हो जाएगा। 3 और तीनों 3 दिन 5 पाँच के होता अलावा है। उसके पास कुछ नहीं होता। वरना तू दलील दे, या नबी पढ़ना जायज नहीं है, हराम है, दलील दे। वो मेरे कयामत तक नहीं दे सकता, मेरा एक अमल दलील नहीं नहीं दे है, सकता। समझ रहे हो। मेरा अमल वो नहीं है जो अमल नहीं है तो मैं क्या तो हुआ? बोल रहा दावा हूँ। तुम्हारा हुआ ना कि हराम है, नाजायज है, दावा तो है, दावे पर दलील होती है। मैंने कब कहा कि हराम है? मैंने तुमसे अच्छा तो पूछा हराम ना नहीं कितना है, कि या मतलब नबी, तू अच्छा तू कह तो हराम नहीं मानता उसको? या नबी जब तुम पढ़ तू रहे हो तो हराम इसका नहीं दलील मानता, चाहिए पहले हमको। मुझे बता, तू हराम मानता है या नहीं मानता है? तो दलील दे दे, फिर साबित हो नहीं नहीं जाएगा नहीं, तो हराम तू है तू या हलाल। बगैर दलील के क्या मानता है? तो दलील देना। अभी नहीं मैं नहीं, तो कुछ तू नहीं मानता। कुछ भी मानता हूँ, अरे कुछ भी मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो दलाइल के अंबार है, ठीक है। उसकी अहमियत कुछ नहीं है जब तक आ? दलाइल ना मिल जाए उसकी। क्या चीज? उसकी अहमियत कुछ नहीं है जब क्यों तक कुछ दलाइल ना नहीं, मिले। क्या कुछ अहमियत नहीं है? अरे तो या नबी का तुम सलाह दलील तो दो भाई, तो हाँ अहमियत नहीं अरे है। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि या नबी की कुछ अहमियत नहीं, तो तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? दलील हाँ, कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेदलील इस्लाम से, सुनो सुनो, जो का बगैर इस्लाम का दलील, पार्ट नहीं है ना वो, अरे इस्लाम का सुनो पार्ट सुनो, नहीं है ना, इस्लाम बयान का है। पार्ट नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास? क्या? इस्लाम का पार्ट कहीं नहीं नहीं है, क्या मिलता ना, दलील है? कुरान में मिलता है ना, हदीस में मिलता है, कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए कुरान, अच्छा मतलब कुरान हदीस में नहीं मिला, तुमने कुरान की कितनी आयतें पढ़ी, हदीस की कितनी हदीसें पढ़ी तुमने? काफी। सही मुस्लिम बुखारी मैंने सर्च करा, फिर कुरान में सर्च करा अच्छा सही जैसा मुस्लिम है। की एक हदीस में एटलीस्ट सुनो, सही उसके मुस्लिम की लिए तो तुमने, पूरा। सुनो सुनो यार, सही मुस्लिम की सारी हदीसें तुमने तुमने पढ़ ली? हाँ, जो टॉपिक होता है उसी में ना पढ़ा ना जाता है सारी अच्छा हदीसें, देखिए, एक किसी के लिए ये तो पूरा आले जिल्द कोई पढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ये होता है आले हदस, मतलब दो चलो हदीस ठीक पढ़ है, लेगा, मैंने अच्छा चलो दो ठीक है, हदीस मैंने पढ़ दे गलती के, करा। सुनो सुनो सुनो, सुनो, ओ मैंने प्यारे, गलती करा तो एटलीस्ट तुम दलील तो दे सकते हो ना। नहीं 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 सुनो, समझाने के लिए नहीं कॉल नहीं नहीं, किया, तुम फालतू में तुम बात तौबा कर करो, रहे, तुम टाइम तो वेस्ट पहले कर सुनो, रहे हो। तुम तौबा करो, जब तुम अभी हदीस की सारी एक हदीस ये किताब, एक हदीस की एक किताब मुस्लिम शरीफ, उसकी सारी हदीसें अभी तुम नहीं पढ़ चुके, तो तुमने दावा कैसे कर दिया कि कुरान में नहीं आया, हदीस में नहीं आया? तौबा करो, झूठ जाहिर सी बोला बात है, तुमने। कोई अगर नहीं टॉपिक नहीं, वाह खोज रहा है। जाहिर सी बात, फिर अच्छा, अजीब बात कर रहे हो ना, चलो जाहिलों चलो की ठीक तरह, है, इतना चलो पढ़े लिखे हो चलो भी ठीक तुम। है, चलो। तुमसे एक अब मैं क्वेश्चन किया सामयीन यार, को जिसका खबरदार दलील करो, नहीं सुनो, दे रहा, बात आप सुनो, सामयीन को मैं खबरदार करो, सामयीन जो बगैर दलील के बात करे आज के दौर में उसे वहाबी कहते हैं, जो अकल के फतवे पर कयास करके बात करे उसे वहाबी कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जाहिर सी बात है, मतलब कुरान हदीस नहीं है, अब इससे मालूम होता है और ऐसा लगता है, यानी कि इनके पास ना कुरान होता है ना हदीस होता है। ये कहेगा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता, मतलब इनके यहाँ अकल के फतवे पर अमल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस तुम्हें सुना रहा हूं, सुन हदीस, और इस हदीस से एक नहीं मेरे सारे अमल साबित हो जाएंगे। तिरमिजी में अच्छा इमाम सही तिरमिजी है। लेकर के आए हैं, सही हदीस है। और अबू दाऊद हदीस शरीफ नंबर में, बता देना, जाके हाँ चेक करना, लाइब्रेरी है हमारे पास, हदीस लाइब्रेरी नंबर तुम्हारे बता पास दो। है? चलो एक मिनट रुको, मैं हाँ चलो अभी मैं बात करने के बाद हदीस नंबर बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हदीस सुना दो। हाँ हदीस में है, और ये तफसीर कुर्तबी, इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी में लेके आया है, अबू दाऊद में या निसाई में भी ये हदीस मौजूद है, इंशाल्लाह मैं तुमको हवाले दे दूंगा। तो ठीक है इसमें मौजूद है, यूसुफ भाई मैं आपको ये हदीस शायद भेजा था ना माता को देने के लिए, तुम हदाब से बात अगर हुई तुम्हारी? है तो आप भेज दिएगा इनको, नहीं तो मैं भेज दूंगा। चलिए ठीक हाँ, है, देखिए तुम ही हदीस भेजो। पाक सुन लीजिए। हाँ हदीस पाक में है कि मेरे आका फरमाते हैं कि हलाल वो है, हलाल यानी अच्छा। कि उसे, हलाल वो है जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, उसे तुम हलाल समझो। हम्म, और हराम वो है जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, उसे तुम हराम समझो। यानी हम्म, हराम को, हलाल को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। हम्म, तो ये हराम जो हैं, तो जिस चीज़ से खुदा व रसूल रोके, ठीक है, या हम्म, हुक्म दे, तो हुक्म की तामील ना करना ये भी हराम में आता है, ठीक है, और मना से ना रुकना ये भी जो है हराम में आता है। तो हराम ये की बात है, वजाहत कुरान और हदीस में मौजूद है, ठीक है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि हलाल उसे हलाल समझो जिसे अल्लाह ने जो है कुरान में बयान फरमा, जिसको अल्लाह ने बयान फरमा दिया, और हराम वो है जिसको अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब कुछ चीज़ें दरमियान में रब रसूल ने छोड़ दिया है, अच्छा, जिसको ना कौन सी चीजें हराम छूट गई? नहीं भाई पहले सुन लो, पहले कुछ चीज़ों को रब रसूल ने दरमियान में छोड़ छोड़ दिया दिया है, अच्छा हाँ। जिसको न जिससे ना मना किया गया है न जिसका हुक्म दिया गया है। अच्छा तो यहाँ नबी सलाम अलैका ये पढ़ने से ना मना किया गया है न इसका पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ये आया बीच में। तो मेरे नबी फरमाते अच्छा, हैं ये बीच तुम्हारे लिए में ला जायज़ दिए। है, माफ़ है। अजीब हाँ हाल है हाँ। भाई, हम अच्छा तुमसे बीच में नहीं दलील आया तो मान रहे हुक्म हैं, तुम कहाँ मौजूद क्या है क्या? बोल रहे हो? अच्छा सुनो ना, देखो मैंने जो हदीस से मतलब बताया है वो ये है कि जिस चीज़ से रब रसूल ने मना नहीं किया, ठीक है,
और जिस चीज को करने का हुक्म भी नहीं दिया, ये दोनों चीज, जिस काम के लिए हुक्म भी साबित नहीं है, मना भी साबित नहीं है, वो बीच में आती है। ठीक है, अब या नबी सलाम अलैका, यहाँ इसके लिए मना साबित करो या हुक्म साबित करो। अगर मना और हुक्म साबित नहीं कर सकते तो मानना पड़ेगा ये बीच में है जो जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह। जायज जबरदस्ती जायज नहीं होती कोई चीज। अरे तो हम तो हदीस पेश कर रहे हैं। जो तुम दरूद और सलाम की बात कर रहे हो। मुनव्वर भाई ये भी हाँ। फॉलोअर है, ये भी नूर बसर भी फॉलोअर है महताब का। हाँ जो बात नहीं तो देखिए ना यूसुफ भाई, ये जवाब दे हमें। मैंने हदीस पेश किया, ये कयास करेगा, अल्लाह की कसम ये कयास करेगा, ये हदीस नहीं पेश कर सकता। हाँ हदीस पेश नहीं कर पाएगा ये हाँ। गलत हदीस। चल बताओ हदीस। अच्छा, इस हदीस पर तुम्हारा ईमान है जो हदीस मैंने पेश किया है? अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ ईमान है यार? सही हदीस है तो पूरा अरे सही है हदीस, मैं अभी तुझे भेज रहा हूँ, तो तू कहाँ मानता है यार? देखो रसूलुल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जिससे मना नहीं, जिसको मना, जिस चीज के बारे में मना भी साबित नहीं है, हुक्म भी साबित नहीं है, उसे ले लो, और जिस चीज से रोका उसे रुक जाओ, बेहतर। अरे वो रोका और मना करने वाला वो कुरान में है, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अरे यार वो कुरान की आयत है, मैं तुम्हें अभी कुरान से बात नहीं, मैं हदीस पे बात कर रहा हूँ। वहां तो मेरे नबी मालिक और मुख्तार साबित होती हैं, तुम लोग तो मेरे नबी को मालिक मुख्तार नहीं मानते हो। ठीक है, क्यों नहीं मानते भाई? नहीं मानते तो वहां भी नहीं मानता, वहां भी तो कहता है कि मोहम्मद अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा पाएगा, माज़अल्लाह, ऐसा अकीदा होता है उसका। हाँ बोलो, जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर, बोले जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है कि नहीं है? ये तुम्हारी अकीदा होगी, समझ ऐसा कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी के ताल्लुक से तो हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेंगे, और ऐसे ऐसे जहन्नमी को निकालेंगे जो जहन्नम में रहते रहते उनका नाम ही जहन्नमी पड़ जाएगा और वो जहन्नमी के नाम से पहचाना जाएगा, लेकिन मेरे नबी उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत अता कर देंगे। ये हम आशिकों का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो देखिए आप देखो 3 और 3 5 मत करो, मुझे जवाब दो, या फिर आप मान लो कि आपका धर्म जो है कुरान हदीस के खिलाफ है, कि नबी पाक फरमाते हैं कि जिस चीज से मना भी नहीं किया गया है, यानी जिसके लिए मना साबित नहीं है, हुक्म साबित नहीं है, या नबी सलाम अलैका के लिए मना साबित है, हुक्म साबित है? आप मुझे बताइए। सुनो भाई, हाँ हुक्म साबित है, हम इस पे बात कहाँ हुक्म साबित है बताओ? सुनो ना, बात सुनो, हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा रिसर्च करते, खोजना पड़ेगा थोड़ा। हाँ बोलो। तुम्हारी इधर आलिम तो है नहीं, तो व्हाट्सएप है ना तुम्हारा? अरे तुम मुझे जवाब दो यार, व्हाट्सएप को छोड़ो, जवाब दो। या नबी के लिए हुक्म साबित है, तुमने झूठ बांधा, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, झूठ बांधा तुमने। चल साबित कर, कहाँ साबित है कि या नबी पढ़ो? क्या बोला या नबी पढ़ना, या नबी सलाम अलैका पढ़ना साबित है, पढ़ पढ़, कहाँ से साबित है? कहाँ हुक्म कहाँ दिया है? हुक्म कहाँ? अरे मैं दरूद और सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ नबी की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं तो दरूद, अभी फिर कयास में क्यों गया? ये देखो ये कयास कर रहा है यूसुफ भाई, ये कयास कर रहा है, ये कयासी फतवे वाले कयास कर रहा है। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये हदीस के मामले में कयास कर रहा है। मैं हदीस रसूल लफ्ज ब लफ्ज बयान कर रहा हूँ, ये कयास कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना ये अपने मुल्लाओं का पुजारी है, ये अपने मुल्लाओं की मानेगा, ये कभी हदीस कुरान नहीं मानेगा। सबसे बड़ा बागी है ये कुरान हदीस का। तुम किसका मानते हो? हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मानते हैं, इसलिए तो हम पेश कर रहे हैं तुम्हारे सामने हदीस। पेश तो कर नहीं रहे। अरे अल्लाह की लानत हो तुझ पर, झूठे लानती। मैंने तिरमिजी का हवाला दिया और अबू दाऊद का हवाला दिया, तफसीर कुर्तबी का हवाला दे करके मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी तू मुझे झूठ बांध रहा है मुझ पर। चलो सुनो, बात बना रहे तो सुनो, मुझे पता नहीं, मैं इधर उधर कहाँ, सुनो, मैं हदीस पढ़ के हदीस के लफ्ज पर बात कर रहा हूँ कि हदीस का लफ्ज ये है कि जिससे रोका नहीं और जिसका हुक्म नहीं दिया। तो या नबी सलाम अलैका का ना हुक्म दिया है ना मना किया है, ये बीच में इसलिए आता है, इसलिए हम समझते हैं जायज है। अब तुम अगर जायज समझना तो, ना समझना वो क्या मायने? अरे रसूलुल्लाह समझते हैं हम, थोड़ी रसूलुल्लाह समझाते हैं हमें, हम कहाँ समझ रहे हैं? दरूद सलाम का ऑर्डर, अभी दरूद सलाम छोड़ो, अभी नहीं मैं इसमें घुसा रहे हो, अभी फिर तुम भाग रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया हर एक अमल के बारे में, दरूद सलाम का या किसी का नाम लेकर के नहीं फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया कि जितनी भी चीज हैं, अगर हुक्म और मना साबित नहीं है, उसका तुझे हुक्म भी नहीं दिया गया, मना भी नहीं दिया गया, वो जितनी भी चीजें हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो तो वो जायज में आता है। ठीक है, तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। कैसे कुरान और खिलाफ? दरूद पढ़ना नबी पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? अच्छा, दरूद हाफिज, दरूद पढ़ना कुरान के खिलाफ है? नबी को सलाम करना कुरान के खिलाफ है? हाफिज हो, आलिम हो, क्या हो, या नबी पढ़ना खिलाफ है। अरे तो या नबी दरूद, अच्छा या नबी का, या नबी सलाम अलैका का क्या मानना है? हमको नहीं पता माना होना। अच्छा तो फिर तुम उर्दू जबान में नबी, सुनो, उर्दू जबान में अल्लाह उसके रसूल की तारीफ क्यों करती हो? तुम लोग बना दिए तो तुम काफिर मुशरिक हो ना अपने। मैं कहता हूँ वहाबी अपने हर उसूल से खुद ही काफिर है, मुशरिक है, दुश्मन इस्लाम और इस्लाम का बागी, हदीस का बागी। मैंने तुझे साबित किया बेटा, मैंने तुझे साबित कर दिया। सुन,
तुम्हारे दिल में एनर्जी मोहर वेस्ट कर लगा रहे हो। है, तू मरेगा काफिर होकर के, इसलिए कि अल्लाह को मंजूर नहीं है कि तू जन्नत में जाए, तू नापाक और गलीज है। यूसुफ भाई इसका काम हो गया, मैं रखता हूँ। दुनिया में कयामत हाँ आ जाएगी, इनमें कोई ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो कुरान हदीस से अपना अकीदा अपना अमल साबित कर दे। ये सिवाय सवाल के फालतू में गठरी भाग लेके रहे हो। घूमने के कुछ नहीं कर सकता। ये सवाल के गठरी भाग को रहे लेके हैं घूम सकता है। ठीक है यूसुफ भाई, मैं अब फोन रखता हूँ। भाग